Hey guys, welcome back to my channel Bansal Tutorials. So last वीडियो में हमने चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 की थी फ्रॉम गणित मंजरी क्लास 9th. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे. So फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है a teacher mixes a large bag of sweets of different colors and randomly selects a sample of 30 sweets. She counts the number of sweets of each color. So there are 10 red sweets, 8 green sweets, 7 yellow sweets and 5 blue sweets. In the first part, we need to calculate the probability that a randomly picked sweet from the sample is green. So we know that probability that the number of favorable outcome to be green is, तो green के जो sweets हैं वो है 8 and total जो हमारे पास outcomes हैं, जो हमने total number of sweets हैं वो 30 है. So that answer will be 8 upon 30. I hope इतना clear है. Now in the second part they have asked us if there are 600 sweets in total in the large bag, estimate how many are likely to be yellow based on the sample results. तो अगर हमारे पास येलो स्वीट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास येलो स्वीट 7 गिवन है. फाइन. सो इफ वी हैव 7 स्वीट्स आउट ऑफ 30 और अगर हम 600 का सैंपल निकाल रहे हैं, so out of 600 we'll have 20 sweets, 20 into 7 which is 140 yellow sweets. And since total outcomes are 600, so we'll have our final answer to be 140 upon 600 which is further equals to 7 upon 30. I hope your question clear hai. Now let's look at the next part which is question number 2. Question number 2 में बोला है a survey is conducted at a school where a random sample of 40 students is asked about their favorite club. जो responses आए हैं वो हमें given है और हमें assume करना है there are total 800 students. Fine. So अगर 40 में से हमें ये सैम्पल स्पेस गिवन है, हमें 800 के हिसाब से निकालना है. सो फर्स्ट पार्ट में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट फ्रॉम द सैम्पल प्रेफर्स द आर्ट क्लब. तो आर्ट क्लब के लिए 11 आउट ऑफ 40 है. पहले हमारे पास आर्ट क्लब स्टूडेंट्स आर 11 ऑन 40. पर अब हमें सैम्पल स्पेस 100 लेना है, 800 लेना है. तो इफ वी जस्ट कैंसिल इट आउट वील गेट 220 आर्ट क्लब स्टूडेंट्स आउट ऑफ 800. फाइन. और हमें यही निकालना था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम आर्ट क्लब में से एक रैंडम स्टूडेंट को चूज करते हैं. सो दैट विल बी 220 अपॉन 800. आई होप ये इतना क्लियर है. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वील गेट इट एज 11 अपॉन 40. सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ let's look on the second part. उसमें बोला using the sample results estimate how many students in the whole school are likely to prefer sports club. Sports club में 9 students are out of 40. So if we talk about sports club we have 9 students out of 40 and हमें sample space अब 800 लेना है. So we'll get this answer as 180 and probability to choose a student from sports club out of the total sample space 800 is 180 upon 800 and we'll get a final answer as 9 upon 40. I hope इतना clear है. Second question. Now देखते हैं हम third question में हमसे क्या बोला है. Toss a coin 20 times and record the result each time heads or tails. So ये हमारे पास बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है जो हमें खुद करके देखना है. सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो हमें एक पेपर कप के थ्रू एक एक्टिविटी करनी है जिसको हमें टॉस करना है 100 टाइम्स विच इज़ ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी. जो क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता. फाइन. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ फेयर 6-sided die. So this is question number 5th. अगर हम एक 6-sided die को रोल करेंगे तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस आएगी दैट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड इवन नंबर्स इसमें से वी नो दैट इवन नंबर्स का जो सेट होगा दैट विल बी 2 4 एंड 6. So probability of picking out an even number
of getting an even number will be 3 because इसका जो sample size है वो 3 है और जो total sample size है वो हमारे पास 6 है. So that will be 3/6 which is further equals to 1/2. Now let's look at the question number 6. Question number 6 में हमें बोला है suppose you roll a 6-sided die 12 times and get a 3 times. 3 जो हमें मिला है वो 3 टाइम्स मिला है. व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाई. सो सिंस हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है 3 हमें 3 टाइम्स मिला है तो हम इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कर देंगे. आउट ऑफ 12 टाइम्स हमारे पास 3 टाइम्स आया है तो P ऑफ गेटिंग अ 3 एक्सपेरिमेंटली जो हमने करके देखा है दैट विल बी 3 on 12 which is further equals to 1/4. पर अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें which they are asking कि theoretically rolling a 3 की कितनी probability होती है. So if we take this theoretically then we'll get our answer 1/6 क्योंकि out of 6 outcomes हमने यहाँ पर भी डाई रोल किया था तो out of 6 outcomes 3 हमारे पास एक बार है तो इसकी theoretically जो probability होगी वो 1/6 होगी. Now in the third part they're asking why might these probabilities be different. Would you expect to happen if you roll the dice 60 times, 600 times और 6000 times. तो जब भी हम experimental probability करते हैं तो जितने कम हमारे पास हम chances होते हैं उतनी कम वो probability आती है most likely. So जितनी ज़्यादा बार अगर हम die roll करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास better outcomes का result आता है. I hope ये clear है. So this was it for this video. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं. और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो विच यू शुड ज्वाइन बिकॉज इट्स हाई टाइम यू शुड लाइक कंप्लीट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ मैथ्स तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है. So this was it for this video. Thank you.